फंडामेंटल समझना ही सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये समझ गए तो आपको फिर से अगली बार कुछ भी याद रखने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। Dear students, today we will learn all the intricacies in a wave equation by way of solving one problem. So, here is today's problem for all of you to solve. This graph, this sketch shows displacement time graph of a sinusoidal wave at x is equal to 8 meter. That means a wave is traveling in x direction, let us say wave is traveling in x direction, and whenever a sinusoidal wave passes through a medium, all particles of the medium perform simple harmonic motion. At x is equal to 8, x is equal to 8 is coordinate of a particle, it is address of one particular particle. So, at x is equal to 8, there is a particle which is performing simple harmonic motion. Let us say it is a transverse wave, wave is traveling in this direction and this particle is performing simple harmonic motion. Now, for that simple harmonic motion, this is displacement time graph. So, the question says, the figure shows displacement time curve of a sinusoidal wave at x is equal to 8 meter, taking velocity of wave to be 6 meter per second in positive x direction. Write the equation of the wave. You have to write the equation of the wave assuming that it is traveling in positive x direction and its speed is 6 meter per second. For a change, I will give you the answer beforehand. मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप सभी लोग ट्राई कीजिए, देखिए आपका आंसर ही आता है क्या, और प्लीज यही सही आंसर है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। मैं बिल्कुल हट जा रहा हूं, आप ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में और खुद से ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, जो करना है कीजिए, प्लीज डू इट। Okay, let us move on. There are few things that I would like to mention at the outset. First thing, as I said just now, that when a sinusoidal wave travels through a medium, each and every particle of the medium performs simple harmonic motion. Now, if a particle of the medium is performing simple harmonic motion, let us say along y direction, this is how the particle is moving between these two extreme positions. In most simplest form, the equation of SHM for this particular particle can be written as A sin omega t, right? All of you know this. This is correct equation representing the displacement of the particle as a function of time, provided at time t is equal to 0, particle is at mean position and it is traveling in positive direction. If at time t is equal to 0, particle is at its mean position and is traveling in positive direction, then equation of simple harmonic motion is simplest and it can be written like this. But if the particle is oscillating and a scientist comes, he wants to investigate the motion, he puts on his stopwatch when the particle is not exactly here, it is somewhere here, here or here. टाइम 0 जब आपने लिया उस समय पार्टिकल यहां नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इधर कहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट द सिचुएशन. इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन in its general form is written like this. This delta is known as initial phase and it depends on the position of the particle at time t is equal to 0. For example, if time t is equal to 0 is taken when the particle is at positive extreme, then value of delta is pi by 2, because इस equation में time 0 लिखने से y की value a मिलनी चाहिए. जब time 0 है तो displacement a के बराबर है. So when you put t is equal to 0 and delta is pi by 2, you get y is equal to a sin pi by 2, which is a. तो अगर ये पार्टिकल यहाँ कहीं था तो नेचुरली और उधर जा रहा था तो डेल्टा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी. अगर ये पार्टिकल यहाँ है और नीचे की तरफ आ रहा है तो डेल्टा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में होती है. यहाँ है टाइम 0 पे और इधर जा रहा है तो डेल्टा की वैल्यू पाई होती है. अगर टाइम 0 पे यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तो 3 पाई बाई 2 होती है, सो ऑन सो फोर्थ. So this delta is initial phase constant, right? And suppose this is a string
a taut string. It is fixed to a wall here. It is under some kind of tension, right? And this end of the string is being jerked by me. I am swaying it up and down. What I am doing is I am moving this particle such that it performs simple harmonic motion. Now this particular particle is performing simple harmonic motion, and its displacement time equation can be something like this. I hope all of you know what is omega. Omega is 2 pi upon time period. Yeah, 2 pi upon f, where f is frequency. Okay. So this particle is being moved up and down by me. I am the source, and its simple harmonic motion can be represented by an equation of this sort. Okay, fine. Now, if I know the displacement equation for this particle, how can I write the wave equation? Because this particle is going to disturb the next one, this is going to disturb this one, this is going to disturb this one, and in some time the whole string will be swaying, isn't it? So the disturbance is propagating this wave. Suppose this x is equal to 0. x 0 पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में लिखना आपको आता है. इस इक्वेशन से आप ये बता सकते हो कि टाइम t पर ये पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या है. टाइम t की वैल्यू रख दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट. लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट x है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम t पे क्या होगा, ये हम कैसे लिखेंगे? वेव इक्वेशन वो इक्वेशन है जो किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताती है. तो हमें सिर्फ इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना आता है, लेकिन किसी दूसरे पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट x है उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिख सकते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर ये डिस्टर्बेंस, जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहा हूं, है ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टर्बेंस v स्पीड से आगे जा रही है, मतलब वेव की स्पीड v है, तो प्लीज गौर कीजिएगा, डिस्टर्बेंस को यहां से यहां पहुंचने में, x डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगने वाला है वो x बाई v होगा. अगर डिस्टर्बेंस v स्पीड से चल रहा है तो डिस्टर्बेंस को x डिस्टेंस आगे जाने में x बाई v टाइम लगेगा. इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जो डिस्टर्बेंस, जो स्टेट आप यहां देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि पार्टिकल टाइम 0 पे 1 मिलीमीटर ऊपर है, यहां से टाइम 0 पे, तो इतने टाइम पे यहां का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से 1 मिलीमीटर ऊपर हो. प्लीज सुनिए, जो डिस्टर्बेंस आप यहां देख रहे हो 1 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन दिस केस. यहां डिस्टर्बेंस है 1 मिलीमीटर. इतने समय में यही डिस्टर्बेंस, यही स्टेट यहां ट्रैवल कर जाएगा. ये पार्टिकल यहां ट्रैवल नहीं करेगा, सिर्फ डिस्टर्बेंस आगे गया. अब ये पार्टिकल उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट में हमने इसको टाइम 0 पे देखा. इसको रिवर्स करके बोलिए, तो रिवर्स करके बोलिए, टाइम t पर इस पार्टिकल का स्टेट, टाइम t पर इस पार्टिकल का स्टेट मतलब y कोऑर्डिनेट वही होगा जो टाइम t माइनस x बाई वी पर इस पार्टिकल का स्टेट था. सुनिए ठीक से क्या बोल रहा हूं. किसी टाइम t पर यह पार्टिकल कहां है, यह जानने के लिए मैं ऐसे सोच सकता हूं कि टाइम t पर यह पार्टिकल कहां है. यह पार्टिकल वही है जहां यह पार्टिकल था एट सम अर्लियर टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू एक्चुअली t माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि डिस्टर्बेंस को यहां से यहां जाने में x बाई वी सेकेंड लगा है. तो टाइम t पे यहां वही स्टेट दिखेगी जो x बाई वी सेकेंड पहले यहां थी. तो टाइम t पे यहां वही हो रहा है जो x बाई वी सेकेंड पहले यहां हो रहा था. मतलब इस टाइम पे इस पार्टिकल का जो स्टेट था वही स्टेट इस पार्टिकल का टाइम t पे होगा. तो इस पार्टिकल के SHM का इक्वेशन तो जानते हो, दैट मींस इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो आप किसी भी टाइम पे लिखना जानते हो. तो भाई इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर हम किसी भी टाइम पे लिखना जानते हैं तो इस टाइम पे भी लिख देंगे. इस टाइम पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऐसा. यही वेव इक्वेशन है. हमने क्या लिखा, हमने एक्चुअली ये जो इक्वेशन लिखा ये क्या बता रहा है, ये y कोऑर्डिनेट बता रहा है किसी भी पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट पे, जिसका कोऑर्डिनेट x है. कैसे, फिर से रिपीट, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम t पर वही है जो कुछ समय पहले, इतने समय पहले इसका डिस्प्लेसमेंट था. तो अगर आपके घड़ी में t टाइम हो रहा है, उस टाइम में से x बाई वी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. अब इस टाइम पे ये कहां था ये सोचिए, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था. तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं, किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं.
तो इस टाइम पे लिख दिया, इस टाइम पे टी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे मुझे क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तो दिस वेव इक्वेशन, अगर आप इतनी बातें समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को एक ट्राई और कीजिए एक कोशिश और कीजिए, करके देखिए। चलिए सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस। इस ग्राफ को देखकर हमें, ये बेसिकली क्या है, ये वाई टी ग्राफ है, मींस x इज इक्वल टू 8 पे एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है उसका ग्राफ है। कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है, समझा रहा हूं। ये ग्राफ ये कह रहा है कि टाइम 0 पे पार्टिकल यहां कहीं था, इसका y कोऑर्डिनेट टाइम 0 पे कुछ था, थोड़ा और समय बीता, इसका y कोऑर्डिनेट बढ़ के मैक्सिमम हो गया, यहां पहुंच गया। थोड़ा और समय बीता, इसका y कोऑर्डिनेट घटने लगा और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये मीन पोजीशन पे आ गया। t इज इक्वल टू दिस टाइम पे, जो भी ये टाइम है, इस टाइम पे ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया। सो दिस इज हाउ द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, दैट इज ग्राफ टेलिंग यू द y coordinate of the particle at any specific time t. Remind you, the particle is the one which is located at x is equal to 8. Okay. By looking at this graph, we can understand that time period of this wave motion is 6 seconds. 2 से 8 सेकेंड के बीच में एक साइकिल पूरा हो गया. So the time period is 6 seconds, which means omega is 2 pi upon t, which is 2 pi by 6 is pi by 3 radian per second, right? This is the value of omega. Now wave speed is also given to you, 6 meter per second. So you can work out the wavelength, isn't it? Or you can work out the value of k, whatever you call it. Wavelength या k is angular wave number, it is 2 pi by lambda. Basically ऐसा लिख देता हूँ उसको, आप सभी को याद रहता है. You all know that wave speed is given by omega by k, which means k is omega by v, isn't it? What is omega? Pi by 3. So what is wave speed? 6. So this becomes pi by 18 radian per meter. I hope I am correct. Omega is pi by 3, v is 6. So it is pi by 18. If you wish to find the wavelength, yes, you can do it. K is nothing but 2 pi by lambda. Let me write it. This is 2 pi by lambda, therefore lambda is 36 meter. 2 pi by lambda. So lambda is 36 meter. So the time period is 6 seconds, wavelength is 36 meter, and wave speed is 6 meter per second. This is what is given here. Now let us focus on particle at x is equal to 8. Let us focus on this particular particle which is at x is equal to 8. Its displacement time graph is given like this. Let us just try to write the equation of simple harmonic motion of this particle. Forget about wave equation. Can we write the motion equation of simple harmonic motion of this particular particle which is at x is equal to 8? We are talking about a particle which is located at coordinate x is equal to 8. Can we write the equation of simple harmonic motion of this particle? At time t is equal to 0, the y coordinate of the particle at time t is equal to 0 is not 0. Therefore, the equation of simple harmonic motion will be somewhat like this: a sine omega t plus delta. Is the amplitude given in the question? I am so sorry, amplitude is 0.5 meter, please write it, it is not given. I am so sorry, amplitude is 0.5 meter, this is 0.5 meter, ये marking यहाँ पे miss हो गया. Amplitude is 0.5 meter, students, ठीक है? Please, amplitude is given. I will write it as a. It is 0.5 meter. Okay. So this is the equation of simple harmonic motion of the particular particle which is located at x is equal to 8. Now we have to find out what is the value of delta. Omega is known to us, right? Omega we have been able to calculate by the given data. Omega is equal to pi by 3. Therefore, this becomes pi by 3t plus delta. Have you figured out the value of delta? Can you tell me the value of delta? Pause for a minute, think over it and tell me the correct value of delta.
ठीक है, एक पार्टिकल ऐसा वाई डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा ही बनाता हूं मैं, ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में। टाइम पीरियड टी है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल टाइम 0 पे यहां रहा होता और पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा होता तो इसके एसएचएम का इक्वेशन ये होता। ओमेगा को मैंने 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड लिख दिया, ठीक है ना बेटा। अगर ये पार्टिकल टाइम 0 पे यहां मिला होता और ऐसे चल रहा होता तो एसएचएम का इक्वेशन सबसे सिंपल तरीके से ऐसे लिखा जाता। अब जैसे जैसे टाइम, ये टाइम है जो घड़ी में टिक 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 आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये एंगल आगे बढ़ता है, बड़ा होता है। ये एंगल फेज एंगल है, किसी भी इंस्टेंट पे ये फेज एंगल है। अब ऐसे ही ग्राफ को विजुअली थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ में आ जाता है कि ये 6 सेकंड का इंटरवल है, ये 3 सेकंड है, तो यहां से लेके यहां तक भी 3 सेकंड है। ये 0 से 2 सेकंड है, मतलब ये वाला 1 सेकंड है। अगर टाइम निगेटिव हो पाता तो यहां -1 सेकंड लिखते हैं, इजंट इट? ऐसा ही है ना। देखिए ये जो हाफ कप है ये 3 सेकंड का टाइम इंटरवल लेता है, तो दिस इज 3 सेकंड, दिस इज 2 सेकंड, देयरफॉर दिस इज 1 सेकंड। तो टाइम पीरियड जो है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो 6 सेकंड है। और ऐसा सोचें कि पार्टिकल टाइम 0 पे यही रहा होता तो उसको यहां से यहां जाने में 1.5 सेकंड लगते हैं। 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 6 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में हाफ ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड इज बेसिकली 1/6 ऑफ द टाइम पीरियड। 6 सेकंड टाइम पीरियड है, 1 सेकंड इज 1/6 ऑफ द टाइम पीरियड। प्लीज समझिएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। ये टाइम टिक 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 चलता हुआ जब कैपिटल टी के बराबर हो जाता है तो फेज एंगल 0 से बढ़ के 2 पाई हो जाता है। ये जो टाइम है घड़ी में जो भागता जा रहा है, जब ये 0 से चल के कैपिटल टी के बराबर होता है तो एक साइकिल पूरा हो जाता है, ये एंगल 0 से 2 पाई हो जाता है। तो अगर ये टाइम 1 मिनट के लिए मानिए 0 से 1 सेकंड हो गया तो ये एंगल कितना बढ़ गया? ये एंगल क्या हो जाएगा? ऐसा टाइम पीरियड 6 सेकंड है, विच मीन्स π/3। प्लीज मैं आपको सिंपल मतलब जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सोचिएगा। मान लो कि टाइम 0 पे पार्टिकल यहां होता तो इक्वेशन ऐसा होता, लेकिन ये यहां नहीं यहां है, तो भाई ये फेज एंगल कितना है इसका इस समय? वो फेज एंगल को हम यहां से भी समझ सकते हैं ना, कि अगर टाइम 0 पे यहां होता तो टाइम 0 पे फेज एंगल 0 होता, लेकिन जब यहां पहुंचता 1 सेकंड बीतने के बाद, 1 सेकंड बीतने के बाद ये जहां भी पहुंचता, 1 सेकंड इज नथिंग बट 1/6 ऑफ टाइम पीरियड। सो ये t is 1, this t is 6, so this phase angle would have been π/3। आप और किसी तरीके से सोच सकते हो तो सोच लो, आप लोग जानते हो, बट इट इज सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट द इनिशियल फेज कांस्टेंट ऑफ दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज π/3 रेडियन। x इज इक्वल टू 8 पे जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और उसके इक्वेशन को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम 0 पे उसका जो फेज है वो π/3 के बराबर है। क्योंकि यहां से अगर यहां रहा होता तो यहां से इस पोजीशन तक पहुंचने में उसको 1 सेकंड का समय लग रहा है, y0 से y दिस तक पहुंचने में उसको 1 सेकंड का समय लग रहा है। 1 सेकंड इज जस्ट 1/6 ऑफ टाइम पीरियड। सो 1/6 ऑफ टाइम पीरियड मीन्स द फेज एंगल एडवांसेस from 0 to 1/6 of 2 pi, which is π/3। simple। so ये SHM का इक्वेशन होता है इनफैक्ट उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए। अब हमसे इसके SHM का इक्वेशन तो पूछा नहीं गया, हमसे तो पूछा गया है वेव इक्वेशन बताइए। तो फिर से हम चलते हैं, ये हमारे पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 8 का SHM का इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक। अब मैं ऐसे सोचता हूं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, ये x0 है, ये x इज इक्वल टू 8 है, ये कोई और कोऑर्डिनेट x है। हम इस पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जानते हैं, इजंट इट? तो किसी कोऑर्डिनेट x पे जो पार्टिकल है उसके SHM का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। किसी टाइम t पे इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना हम जानते हैं,
तो किसी टाइम टी पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं क्या, जनरल कोऑर्डिनेट एक्स पे जो पार्टिकल, हाँ लिख सकते हैं। ऐसे सोच के एक वेव को यहां से यहां तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगने वाला है वो है x माइनस 8 बाई वी, वी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए दिस लेंथ इज नथिंग बट x माइनस 8, x इज एनी जनरल पॉइंट, x माइनस 8 6 की स्पीड से चल रहे हैं, कितने सेकंड में वेव यहां से यहां पहुंच जाएगी, यहाँ। दैट मीन्स जो डिस्टर्बेंस हम यहां देख रहे हैं वही डिस्टर्बेंस इतने सेकंड के बाद यहां दिखाई देगी। उलट के बोले, टाइम टी पे यहां जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी टाइम टी पे यहां पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट इसका रहा होगा एट ए टाइम टी माइनस x माइनस 8/6। रिपीट रिपीट रिपीट, जो डिस्टर्बेंस यहां हम देख रहे हैं वो इतने सेकंड के बाद यहां दिखाई देगा। उलट के बोले, टाइम टी पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतने सेकंड पहले यहां था, वही स्टेट यहां था। तो टाइम टी पे इसका डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इतने सेकंड पहले इसका डिस्प्लेसमेंट। इतने सेकंड पहले मतलब टाइम टी से इतने सेकंड पहले, इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वही इसका डिस्प्लेसमेंट है अभी। तो इस इक्वेशन में टी की जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है और ये बन गया आपका परफेक्ट वेव इक्वेशन, a sin π/3, और t की जगह पे आपको लिखने को मैं रेकमेंड कर रहा हूं t माइनस x माइनस 8/6 प्लस π/3। इस t की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, क्यों, फिर से सोचिए, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम t पे लिख सकते हैं, इसका लिखना है टाइम t पे। इसका टाइम t पे वो डिस्प्लेसमेंट होगा जो कुछ समय पहले यहां था। कुछ समय मतलब कितने समय, इतने समय पहले। तो अगर घड़ी में t टाइम हो रहा है तो t माइनस दिस टाइम, t माइनस दिस, इस समय पे इसका डिस्प्लेसमेंट, वही t सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट। इस टाइम पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन से। t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड दिस इज योर आंसर। ये बन गया आपका π/3t, राइट, माइनस ये x/6, so it is, oh sorry, pi x/18, and this becomes plus, so this becomes actually 4π/9 plus π/3। ये दोनों 4π/9 और π/3 को जोड़ दीजिए तो इट बिकम्स 7π/9। 7π/9 माइनस πx/18 प्लस πt/3, यही हमारा शायद आंसर था। आई होप आई एम करेक्ट। So this is the right answer to this particular question. मैंने वो तरीका नहीं अपनाया जो नॉर्मली क्लासरूम में टीचर पढ़ा देते हैं कि टी की जगह टी माइनस दिस या टी प्लस दिस रख देना, एक्स की जगह एक्स माइनस दिस या एक्स प्लस दिस रख देना। क्यों, उसका जस्टिफिकेशन दिया। मैं एकदम फंडामेंटल तरीके से सोच रहा था एंड आई होप कि फंडामेंटल समझना ही सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये समझ गए तो आपको फिर से अगली बार कुछ भी याद रखने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बड़े आराम से अटेम्प्ट कर दोगे। विश यू ऑल द लक, गुड बाय, बट प्लीज डू शेयर द वीडियोज एंड लाइक देम। You all watch the videos but forget to like it. Please do it, yaar. Thank you.